Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in this session of leadership, emotional intelligence, and decision making. And we're going to start from introduction of basic concepts of leadership theory and practice, which is in relation with the critical review of leadership theory. The article is written by Beverly Alamo Metcalf. First of all, I would like to present in front of you the basic definition of leadership, that leaders are from among us. There are so many aspects in which the leadership can be defined, but this is the favorite most explanation I can present in front of you. Right, moving towards the discussion coming out of the article. In the start, the author is talking about the importance and significance of leadership. And while discussing the importance and significance of leadership, he is coming up with three contexts. The first one is organizational performance. The second aspect is individual effectiveness. And the third perspective in which the author was focusing upon was work-related attitude and behavior. When we talk about organizational performance, there can be many different measures जिसमें के एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को हम evaluate कर सकते हैं. There will be certain subjective concerns and there will be certain objective concerns. In general, when we talk about performance, we are talking about productivity, profitability, satisfaction of the stakeholders. और ये सारी की सारी performance obviously achieve होती है through the efforts and the working of individuals. और इंडिविजुअल की जो एफर्ट है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर. और उन्हीं इंडिविजुअल्स के साथ जब हम एक कल्चरल पर्सपेक्टिव में ऑपरेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनके वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को डेवलप करना, मॉडिफाई करना, इवॉल्व करना, वो भी एक लीडर की जिम्मेवारी में शामिल वो होगा. There are certain issues of leadership and performance measurement. When we talk about subjective assessments, that may include the behavior of the workforce, the management style, the competencies with which the organization is going to get the benefit. And there will be certain objective assessments which in terms of strategic aspects, financial aspects, and operational aspects. और ये दोनों assessments जो हैं ये एक लीडरशिप चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आती हैं. अगर हम लीडरशिप को इन जनरल एक और एक्सप्रेशन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट इज सेड दैट अ लीडर इज समवन हु वुड इन्फ्लुएंस अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स. लेकिन सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं रहती. देयर आर सो मेनी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल प्रेशर्स जिससे एक लीडर को गुजरना है. और एक लीडर को अपने उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रहना बल्कि परसिस्टेंट भी होना पड़ेगा, बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स उसको बहुत सारी रेजिस्टेंसेस का सामना वो करना होगा. बहुत से प्रेशर्स उसके ऊपर होंगे जिन प्रेशर्स को ओवरकम करते हुए उसको ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में अपनी परफॉर्मेंस वो शो करनी है. अब अगर हम ट्रेड थ्योरीज की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप, तो ट्रेड थ्योरीज में इट इज सेड कि यू आर फोकसिंग अपॉन पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स टू डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स. और जिन पर्टिकुलर लीडरशिप ट्रेट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, दे माइट बी एक्स्ट्रावर्जन, दैट कैन बी कंसेंजुअसनेस, दैट कैन बी ओपननेस, दैट कैन बी इमोशनल इंटेलिजेंस. और इसके अलावा भी बहुत से पर्सनैलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि एक लीडर के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड वी ट्राई टू डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स इन टर्म्स ऑफ दोस ट्रेट्स. अब ट्रेड थ्योरीज को जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया
तो we came to know that there are no universal traits found that predict leadership in all situations, because couple of times there were certain traits जो कि followers में relatively ज़्यादा पाई जा रही थी as compared to the leader. And even it also happened that there is someone with the traits which you identified as a leader, लेकिन उन ट्रेड्स के साथ वो शख्स किसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल भी कामयाबी हासिल वो नहीं कर सका. And at the same time, there were other people without those traits, but they were able to get the success. So इस सारे मामले से ट्रेड थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो अनक्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें मिलता है बिटवीन द लीडरशिप एंड द पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रेड्स. अब ट्रेड्स को हम एज ए बेटर प्रिडिक्टर के तौर पर ले तो सकते हैं of the appearance of leadership, for the appearance of leadership, that is basically distinguishing effective and ineffective leaders, right? लेकिन हम उन traits को fixed order में place नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 A B C D these are the traits जो कि जिसमें होंगी वो leader होगा, जिसमें नहीं होंगी वो leader नहीं होगा. लेकिन कुछ हद तक हमें एक तासुर जरूर मिल सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में वी समटाइम्स डिस्कस कि जब ट्रेट्स को एवेल्युएट किया गया टू फाइंड आउट और एवेल्युएट द पर्सनालिटीज ऑफ द पीपल, तो 17,953 ट्रेट्स वर आइडेंटिफाइड. And after finding out 17,953 traits, they put a bottom line that this was wastage of time and resources. The reason being कि यहाँ पर traits खत्म नहीं हो गई थी. There are so many other traits of the human personality कि जिनको अभी further investigate किया जाना वो बाकी था. Therefore, this theory was not having a lot of popularity afterwards in the later times. जब हम 20th century में आगे further develop करते हैं तो the traits were getting weaker in their discussion related to the leadership context. So as I told you, it can be extraversion, conscientiousness, openness. These are the traits जो हम evaluate करते हैं एक leader में. यहाँ पर एक basic assumption इस theory के साथ associated थी that leaders are born. और अगर leaders are born, तो the goal in front of us was to find out the leaders, those who are born with the leadership capabilities and leadership personality and leadership traits. Okay, but the problem जो हमें जिसका सामना करना पड़ा when we started following this concept, वो ये था कि traits do not generalize across situations. जैसा भी आपको मैंने बताया कि एक set of traits को हम हर तरह की situation के लिए constant नहीं बना सक रहे थे. So better at predicting leader emergence than leader effectiveness. ठीक है, तो अब ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आ गए कि उन ट्रेड्स के बेसिस पर हमें अपैरेंटली एक लीडरशिप पर्सनैलिटी दिखाई तो दे रही है, लेकिन अगेन हम उसकी इफेक्टिवनेस को उसके साथ एसोसिएट को रिलेट वो एज सच नहीं कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास दौर शुरू होता है ऑफ बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप. और जब हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो सर्टेन बिहेवियरल थ्योरीज आर प्रेजेंटेड. कुछ थ्योरीज जो आपके आर्टिकल में दर्ज हैं, आई हैव ट्राइड कि मैं उनको भी डिस्कस करूं, और कुछ थ्योरीज जो हैं इन एडिशन टू द आर्टिकल वो भी मैंने यहां पर आपके लिए ऐड अप की हैं. सो बिहेवियरल थ्योरीज को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो थ्योरीज प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स. ओके, इनका जो मेन कॉन्टेक्स्ट था, उन्होंने ट्रेड्स की बजाय उन डेमोन्स्ट्रेशंस को, उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया जो एक लीडर को नॉन लीडर से डिफरेंशिएट करती हैं. सो बिहेवियरल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज सेइंग कि लीडरशिप बिहेवियर कैन बी टॉट, क्योंकि बिहेवियर्स हम लोगों को सिखा सकते हैं. जैसा आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेशन सुना होगा, ओबी मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसको लेकर आ सकते हैं. लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट का कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन लेकर आ सकते हैं, एक खुला तजाद था इस कॉन्सेप्ट के साथ जो ट्रेड थ्योरी में दर्ज था कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कि ये बाय बर्थ इनेट एबिलिटी है, इसको हम डेवलप नहीं कर सकते, इसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते आफ्टरवर्ड्स. अब बिहेवियरल अप्रोच का जो सारा कॉन्टेक्स्ट है, आपके आर्टिकल में जा बजा इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सारी थ्योरीज जो थी दे वर मोस्टली इन्वेस्टिगेटेड इन द यूएस कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सी रिसर्च उस दौर में कंडक्ट हुई जिसने के लीडरशिप थ्योरी को डेवलपमेंट होने में हमें बहुत मदद दी. सो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट हुई एंड दे केम अप विद डिफरेंट वेरिएबल्स जिसमें के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, इस तरह के जो वेरिएबल्स थे दे वर इवॉल्व्ड. जिन वेरिएबल्स की रोशनी में हमने लीडरशिप पैटर्न्स को स्टडी वो करना शुरू किया.
यहां पर बेसिक assumption ये थी कि leaders can be trained, and the goal was कि rather than select leaders who are born with the leadership capabilities, यहां पर main goal ये था कि we have to develop leaders, okay, as per the requirements are. Or the problem encountered was that effective behaviors do not generalize across situations. So हमें कुछ बिहेवियर मिल तो गए जो कि लीडर को नॉन लीडर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो हम बाय ट्रेनिंग लोगों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिहेवियर्स ऐसे ना थे जो कि हर तरह की सिचुएशन में जनरलाइज किए जा सकें. द रीजन बीइंग कि अभी तक की जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट हुई थी, उस डेवलपमेंट ऑफ थॉट में हमने कॉन्टिजेंसीज, हमने डिफरेंट सिचुएशंस को मद्देनजर नहीं रखा था. एंड एट द सेम टाइम हम फोकस सिर्फ लीडरशिप कैपेबिलिटी पे कर रहे थे, हमने फॉलोअर्स को इग्नोर किया हुआ था. So in the later coming models and theories we'll come to know कि जो situational variables हैं, जो contingency perspectives हैं, जहां पर follower को भी हम मद्देनजर रखते हैं, इन चीजों के addition से leadership context को हम ज्यादा बेहतर तौर पर elaborate कर सके और discuss कर सके. अब ये जो studies थी done at University of Michigan and Ohio State University, उनके तहत Black and Newton का concept एक हमारे पास आता है in terms of the managerial grid. So they came up with these two axis values, concern for people and concern for production. और इन्होंने इन दो concepts को, concern for people and concern for production को 9 degrees में वो divide किया. और उन 9 degrees में divide करने से हमारे पास एक मैट्रिक्स ओरिएंटेशन, जो भी आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले पर मौजूद है, एक डेवलप हुई, जिसमें कि हमारे पास 81 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप वो इवॉल्व हुए. अब इन 81 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को अपने समझने की आसानी के लिए हमने आगे फर्दर जर्नलाइज और कैटेगराइज किया इन 5 मेन डोमेन्स. फॉर एग्जाम्पल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, अगर दोनों चीजें कम हैं तो दैट इज द एरिया 1-1. अगर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल इज बोथ आर हाई एट द सेम टाइम, सो द leadership style we are available with is the 9-9. इसी तरह 9-1, 1-9 and 5-5, ये हमारे पास 5 मेन जर्नलाइज्ड एरियाज इस मैनेजरियल ग्रिड में इवॉल्व करते हैं. अब इन पांचों मेन जर्नलाइज्ड एरियाज को हम आगे थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करते हैं in little more detail. For example, when we talk about 1-1 category, तो इस 1-1 कैटेगरी में जहां पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज लो एंड कंसर्न फॉर पीपल इज आल्सो लो, वी कॉल दिस इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट. और इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट टू गेट रिक्वायर्ड वर्क डन इज एप्रोप्रिएट टू सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप. ठीक है, जैसे हमने पिछले सेशन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लीडरलेस ग्रुप्स का. ठीक है, तो लीडरलेस ग्रुप्स या सेल्फ मैनेज्ड ग्रुप्स के अंदर हो सकता है कि इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट वो चल सके कि आपका कंसर्न फॉर पीपल भी कोई खास नहीं है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी कोई खास नहीं है, और विद द मिनिमम इंटरवेंशन यू कैन सस्टेन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप एंड स्टिल बी नोन एज अ लीडर. जिसके बरक्स, विच इज मोर लाइक अ मैनेजर रादर देन अ लीडर, इसके बरक्स अगर हम 9-9 को देखें तो दैट इज व्हाट वी कॉल, ये सेकंड एक्सट्रीम पे मैं जा रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल टीम मैनेजमेंट. और टीम मैनेजमेंट में कहा गया कि वर्क अकम्प्लिश्ड इज फ्रॉम कमिटेड पीपल, interdependence through a common stake is organization purpose, in organization purpose leads to relationships of trust and respect. ठीक है, तो यहां पर मेन जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है दैट इज इंटरडिपेंडेंस rather than dependence or independence. The better option is to go for interdependence. और वहां पर कॉमन स्टेक उसको मद्देनजर रखा गया, कॉमन पर्पस उसको सामने मद्देनजर रखा गया. और 9-9 के केस में, टीम मैनेजमेंट के केस में, द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज आल्सो हाई एंड द कंसर्न फॉर पीपल इज आल्सो हाई. अगली स्ट्रीम की तरफ हम चलते हैं, विच इज 1-9. यहां पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज लो बट द कंसर्न फॉर पीपल इज हाई. So according to Black and Newton, in this managerial concern, we are available with the country club management style. और इस country club management style में thoughtful attention to needs of people for satisfying relationship leads to a comfortable, friendly organization atmosphere and work tempo. ये expression हमारे सामने मौजूद होता है. इसके बरक्स अगर हम 9-1 को देखें, जहां पर concern for production is too much और कंसर्न फॉर पीपल इज वेरी लो, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टाइल को हम नाम देंगे कि दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क मैनेजमेंट. और टास्क मैनेजमेंट में इट इज सेड कि एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स इंटरफेयर टू अ मिनिमम डिग्री. और यहां पर जब हम टास्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अक्सर औकात ये बात भी डिस्कस की गई कि ह्यूमन को भी हम एज ए कंपोनेंट इन द सिस्टम वो पिक कर लेते हैं.
और उसको ट्रीट भी एज ए कंपोनेंट इन द सिस्टम वो किया जाता है, बिकॉज हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज द आउटकम रादर देन फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी। इन चारों एक्सट्रीम कॉर्नर्स के बरक्स हमारे पास एक मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, विच इज 5-5 कंसर्न। इस मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट में इट इज सेड कि एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंसिंग द नेसेसिटी टू गेट आउट वर्क विद मेंटेनिंग मोरल ऑफ पीपल एट ए सेटिस्फैक्टरी लेवल। तो हम एक सेटिस्फैक्टरी कंसर्न की हद तक अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और उस सेटिस्फैक्टरी कंसर्न के मुताबिक हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी होता है और हमारे पास मिडिल लेवल तक कंसर्न फॉर पीपल भी होता है। सो इट इज नोन एज मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। तो उन 81 लीडरशिप स्टाइल्स को हम इन 5 मेन डोमेन्स में एक्सप्रेस वो कर सकते हैं। Obviously, the other domains are also there, and that would be evolved कि कौन सा लीडर किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहा है out of the research. Then comes the relationship of and the contribution of situational and contingency perspective. अब जब हम सिचुएशनल एंड कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसके तहत जो हमारे पास मेन थ्योरीज इवॉल्व हुई, दे वर फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, we need to talk about cognitive resource theory, we need to talk about Hersey and Blanchard situational leadership theory, and then there is obviously path goal theory. इन तमाम थ्योरीज में जो मेन कंसर्न था, मेन assumption वो ये थी कि लीडर का स्टाइल और डिफरेंट कंटिजेंसीज एंड सिचुएशंस, इनको आपस में हम बैलेंस कैसे करें। So assumption underlying the different models were, Fiedler said that the leader's style is fixed, ठीक है, और सिचुएशन के मुताबिक लीडर अपने स्टाइल को तब्दील नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा, या आपको लीडर तब्दील करना है या आपको सिचुएशन तब्दील करनी है। जबकि दूसरों का आर्ग्यूमेंट ये था कि लीडर्स स्टाइल कैन एंड शुड बी चेंज्ड। अब फीडलर के मॉडल को अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, एज द फीडलर सेड कि स्टाइल इज फिक्स्ड, या वो टास्क ओरिएंटेड है या वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और उसने इस रिलेशनशिप एंड टास्क ओरिएंटेशन को इन एसोसिएशन विद सिचुएशन जब इवैल्यूएट किया तो ही केम अप विद सिचुएशनल फेवरेबलनेस फॉर द लीडर। और सिचुएशनल फेवरेबलनेस को इवैल्यूएट करने के लिए ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 मेन वेरिएबल्स। The first one was leader-member relations. The second was task structure. Then comes the position power. इन 3 वेरिएबल्स को उसने काउंट किया टू फाइंड आउट द सिचुएशंस इन विच द लीडर विद अ फिक्स्ड स्टाइल कैन परफॉर्म बेटर। इसमें की assumption ये थी कि लीडर मस्ट फिट सिचुएशन। Options to accomplish this, number 1 can be select leader to fit situation or change situation to fit the leader. ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें के फीडलर ने अपने इस सारी डिस्कशन को वो इवॉल्व किया, एंड ऑब्वियसली ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ कमिंग अप with least preferred co-worker questionnaire, ठीक है। तो with the evaluation done through least preferred co-worker questionnaire, उसने ये डिफरेंट तरह के लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट थे उनको इवॉल्व किया आउट ऑफ हिज रिसर्च। नाउ फीडलर्स मॉडल जब हम उसको सिचुएशनल पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं और हमारे पास सिचुएशनल वेरिएबल्स इवॉल्व करते हैं, तो उनको हम एक नजर देख लेते हैं बिफोर वी डिस्कस द मेन मॉडल। It is said कि लीडर मेंबर रिलेशंस की जब हम बात करेंगे तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैव इन देयर लीडर। जब हम टास्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजरलाइज्ड और प्रोसीजर्ड। और अगर जब हम पोजीशन पावर की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस ड्राइव फ्रॉम वंस फॉर्मल स्ट्रक्चरल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स पावर टू हायर, फायर, डिसिप्लिन, प्रमोट एंड गिव सैलरी इंक्रीजेस। ओके, तो ये हमारे पास 3 मेन आइडियाज आए जिन आइडियाज को अकॉर्डिंग टू फीडलर व्हेन ही वाज कमिंग अप विद द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनियर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल, उसने सिचुएशन की इवैल्यूएशन के लिए यूज किया। नाउ आई एम शोइंग यू इन प्रेजेंटिंग यू द फीडलर्स मॉडल। इसमें हमारे पास द सॉलिड लाइन is basically showing relationship oriented leader and the dotted line is showing task orientation। और फीडलर ने हमारे लिए 8 सिचुएशंस इवॉल्व की जिन सिचुएशंस में हम लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर को इवैल्यूएट करेंगे। इन द फर्स्ट सिचुएशन व्हिच इज द फेवरेबल वन, इट इज सेड कि लीडर मेंबर रिलेशन इज गुड, टास्क स्ट्रक्चर इज हाई एंड पोजीशन पावर इज स्ट्रॉन्ग। जिसके बरक्स जब हम मोस्ट अनफेवरेबल साइड पर जाते हैं तो मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन वुड बी जहां पर ये 8th सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर लीडर मेंबर रिलेशन इज पुअर, टास्क स्ट्रक्चर इज लो एंड पोजीशन पावर इज वीक।
ठीक है, और बकिया 6 जो सिचुएशंस हैं दे लाई इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, in between the favorableness of the situation and when we move towards the unfavorableness. तो ये हमारे पास total 8 situations वो evolve करती हैं. Then out of the research done by the Fiedler, he was with the idea कि जब favorable situation होगी तो the task oriented leader is the one who would be performing good and the relationship oriented leader would be performing low. The reason being that the relationship fellow would be spending more time on establishing relationship, taking care of the software aspects of the human beings, and the person would not be able to come up with higher levels of performance when the situation is apparently favorable. Okay, the performance according to his research outcome was taken up as poor. But with the passage of time, जब situation moderate होती है, तो he was of the view कि जो relationship oriented है, that is the person who would be performing better. क्योंकि अगर आप इन variables को देखो कि इसमें task structure जो है, वो moderate level के ऊपर low की तरफ आ रहा है, ठीक है, और position par जो है, that is getting rather slowly and steadily weak. ओके और आपकी जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप हैं वो भी पुअर की तरफ जा रहे हैं. सो उस सूरत में जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर था दैट इज द फेलो हु इज एबल टू कम अप विद द हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. लेकिन जो टास्क ओरिएंटेड है जिसका फोकस सिर्फ आउटकम ओरिएंटेशन के ऊपर है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी गुड. With the passage of time, जब हम moderate situation से most unfavorable situation की तरफ move करते हैं, तो again जो task oriented है, because उसके पास capability है to come up with the task outcomes, तो उसकी जो performance होगी वो better होनी शुरू हो जाएगी, and the relationship oriented would be again going down. So the resultant effect of this whole discussion is that in the moderate situation, the relationship oriented leader is doing good, and in extreme situations, the task oriented leader is doing good. और सेकंड मेन एस्पेक्ट ये है कि लीडर अपने स्टाइल को चेंज नहीं कर सकता. ओके तो या हमें सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी या हमें लीडर चेंज करना पड़ेगा. सो दैट वाज द होल डिस्कशन रिलेटेड टू द फीडलर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटीजेंसी रिसोर्स थ्योरी, इट इज सेड दैट अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप that states that the level of stress in a situation is what impacts whether our leader's intelligence or experience will be more effective. अब एक सिचुएशन में स्ट्रेस कितना है ये चीज उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करेगी. अब यहां पर हम उन तमाम ट्रेड्स और बिहेवियर उन सब चीजों को पीछे छोड़ आए हैं एंड वी आर प्योरली फोकसिंग अपॉन द स्ट्रेस इन द सिचुएशन. और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च सपोर्ट एविडेंस वो हमारे पास मौजूद हैं. And the research support evidence says that less intelligent individuals perform better. Now, this is very interesting. Less intelligent individuals perform better in leadership roles under high stress than do more intelligent individuals. ठीक है, और उसके लिए टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं नोन एज एनालिसिस पैरालिसिस. क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं इन एनालिसिस, और वो एनालिसिस उनको in the situation of analysis paralysis में ले जाता है, because they would be more involved in analysis rather than the outcomes. Okay, तो यहां पर अब उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास रिसर्च आउटकम आया कि less intelligent individuals perform better in leadership roles than under high stress. और यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि हम जो मौका डिस्कस कर रहे हैं वो मौका सिर्फ हाई स्ट्रेस का है. Then do more intelligent individuals. The second support research we are available with is saying that less experienced people perform better in leadership roles under low stress than do more experienced people. ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहे हैं कि लेस एक्सपीरियंस्ड ज्यादा अच्छा काम करेंगे इन लीडरशिप रोल जब लो स्ट्रेस होगा. ठीक है, और ऑब्वियसली जब हाई स्ट्रेस होगा तो वहां पर एक्सपीरियंस हमें ज्यादा चाहिए. अब ये दो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास फर्दर एड अप हो गए. एक आ गया इंटेलिजेंस और एक आ गया एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीडरशिप डेवलपमेंट. Now, the next theory we are going to talk about is contingency. In contingency approach is coming up with, is talking about basically about Hersey and Blanchard situational model. इन्होंने कहा कि consider leader behavior कि वो टास्क है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और उन्होंने कहा कि assumes that leaders can change their behavior, जबकि फीडलर ने कहा था कि लीडर का बिहेवियर तब्दील नहीं हो सकता. तो हर्से एंड ब्लैंकर्ड के मुताबिक लीडर का बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थ्रू ओरिएंटेशन तब्दील हो भी सकता है.
So considers followers as a situation, और इन्होंने जो सिचुएशन को पिक किया rather than those three variables जिसमें कि लीडर मेंबर रिलेशन और टास्क स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, पोजीशन पार की बात कर रहे थे, इन्होंने सिचुएशन के तौर पर फॉलोअर्स को पिक किया एंड दे सेड कि फॉलोअर टास्क मैच्योरिटी और फॉलोअर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी ये दो चीजें हैं जो कि सिचुएशन को डिफाइन करती हैं। और जब हम फॉलोअर टास्क मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोअर्स, नॉट द लीडर। और जब हम फॉलोअर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस मॉडल में हमारे पास जो बेसिक assumption थी, that is that leaders can and should change their style. ठीक है, लीडर्स कैन एंड शुड चेंज देयर स्टाइल टू फिट देयर फॉलोअर्स डिग्री ऑफ रेडीनेस। ओके, फॉलोअर्स का लेवल ऑफ विलिंगनेस एंड लेवल ऑफ एबिलिटी कैसी है, उसके मुताबिक लीडर को अपने स्टाइल को तब्दील करना है। Therefore, it is possible to train leaders to better fit their situation to their followers. अब हर्सियन ब्लैंकर्ड के मुताबिक जितने आपके फॉलोअर ज्यादा रेडी होंगे उतना लीडरशिप रोल कम दरकार होगा। ठीक है, द मोर रेडी द फॉलोअर्स, द मोर विलिंग एंड एबल, द लेस द नीड ऑफ लीडर सपोर्ट एंड सुपरविजन। और अगर फर्ज करें कि फॉलोअर्स आर कैपेबल इनफ, फॉलोअर्स आर विलिंग, फॉलोअर्स आर एबल, फॉलोअर्स आर रेडी, तो व्हाई ऑन अर्थ वी नीड टू हैव अ लीडर देन? ओके, सो अब यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इफ यू कुड सी कि हमने यहां पे मेंशन किया कि अमाउंट ऑफ लीडर सपोर्ट एंड सुपरविजन एक्सक्यूज मी वो कम होती जाती है जो जो अमाउंट ऑफ फॉलोअर रेडीनेस वो बढ़ती जाती है। ओके, सो दिस आइडिया वाज ऑल कमिंग फ्रॉम हर्से एंड ब्लैंकर्ड। अब हर्से एंड ब्लैंकर्ड की सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो फॉलोअर्स हैं देयर आर फोर टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉलोअर इज अनएबल एंड अनविलिंग and obviously insecure. The second is unable and willing. The third is able and unwilling, which is very apprehensive. And the fourth type of follower would be able and willing. Okay? अब इनके मुताबिक हमारे पास डिफरेंट तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें के लीडर्स को अपने स्टाइल को तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिहेवियर इज रिलेटिवली लो, ठीक है, तो उस सूरत में विच इज द सिचुएशन ऑफ एबल एंड विलिंग फॉलोअर्स, तो वहां पर जो अप्रोच चलेगी दैट विल बी डेलीगेटिंग। अगर एबल एंड अनविलिंग है तो वी कैन कम अप विद पार्टिसिपेटिंग। इफ अनएबल एंड विलिंग है वी कैन कम अप विद सेलिंग स्टाइल, और अगर अनएबल एंड अनविलिंग है तो वी कैन कम अप विद द टेलिंग स्टाइल। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड सेट ऑफ मॉडल इसी कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है, इट इज टॉकिंग अबाउट फॉलोअर्स रेडीनेस। Okay, and if we say that the followers readiness is unwilling and able, तो हमें supportive and participative style के साथ आना है। अगर follower readiness is willing and able तो हमें सिर्फ monitoring करनी चाहिए। अगर followers readiness is unwilling and able तो we need to come up with directive style। और अगर followers readiness is high task and relationship oriented, अगर लीडर का स्टाइल हाई टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो उस सूरत में फॉलोअर रेडीनेस जो है दैट वुड बी विलिंग एंड अनएबल। सो हर्सियन ब्लैंकर्ड ने इस बात पर अगेन मैं एम्फेसिस करवाना चाहता हूं कि उसने ये बात की कि हम इनको ट्रेन और डेवलप वो कर सकते हैं। अब अगर हम LMX थ्योरी की बात करें, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक, तो LMX थ्योरी में कहा जाता है कि लीडर सेलेक्ट सर्टेन फॉलोअर्स टू बी इन, जो कि उसके फेवरेट्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन कंपिटेंस एंड और कंपैटिबिलिटी एंड सिमिलैरिटी टू द लीडर। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जिन लोगों को वो अपना फेवरेट बना रहा है, इन सबऑर्डिनेट्स विल हैव हायर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, लेस टर्नओवर एंड ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन। इसी चीज को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया कि देयर इज इन ग्रुप, देयर इज आउट ग्रुप, और इन ग्रुप के लोग वो हैं जो इनको लीडर फेवर कर रहा है, उनके साथ उनकी हाई इंटरेक्शन है, उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप लीडर के साथ बेहतर है। सो पर्सनल कैपेबिलिटी, सबऑर्डिनेट कंपिटेंस एंड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, ये सब चीजें लीडर और इन ग्रुप वालों को सपोर्ट कर रही हैं। जिसके बरक्स लीडर का जो दूसरे लोग होंगे उनके साथ सिर्फ एक आउट ग्रुप रिलेशनशिप होगा, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। Then we also have another theory which is path goal theory, and it is said that attaining goals reduce roadblocks to success.
ठीक है, आपको गोल्स अचीव करने हैं और आपके सक्सेस के दरमियान जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करवाना ये लीडरशिप का काम होगा। सो चेंज बिहेवियर टू फिट द सिचुएशन, इसका भी सपोर्टिव मॉडल यही है कि लीडर अपने स्टाइल को तब्दील करे ताकि सिचुएशन के मुताबिक वो अपने आप को ढाल सके। सो एनवायरमेंटल कंटीजेंसीज, सबऑर्डिनेट कंटीजेंसीज, ये तमाम वो चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट होंगी व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। और ये आउटकम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन वुड बी डिपेंडेंट अपॉन लीडर बिहेवियर। अब वो लीडर बिहेवियर जैसा भी आपको मैंने हर्सिन ब्लैंकेट के मॉडल में भी दिखाया, इट कैन बी डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, सपोर्टिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। और यहां पर जो कंटीजेंसीज इन्वॉल्व की पाथ गोल थ्योरी के अंदर, अगर हम बात करें एनवायरमेंटल कंटीजेंसीज की तो दे वर टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, वर्क ग्रुप्स। और अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट कंटीजेंसीज की तो इट कैन बी लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट हाउ मच कंट्रोल दे हैव ऑन देयर फेट, दे हैव देयर एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली परसीव्ड एबिलिटी। तो ये तमाम चीजें सबऑर्डिनेट कंटीजेंसीज के अंदर वो पाई गई जो कि मॉडरेट करेंगी इस रिलेशनशिप ऑफ आउटकम्स को विद लीडरशिप बिहेवियर, जो कि वो डेमोन्स्ट्रेट वहां पर कर रहा है, लेकिन उस लीडरशिप बिहेवियर को वो तब्दील करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अब क्रिज्मेटिक एंड इंस्पिरेशनल मॉडल्स फिर हमारे आर्टिकल में इवॉल्व करते हैं, जिसमें कि हीरोइक लीडरशिप की वो बात की गई। और अगर हम हीरोइक लीडरशिप की बात करें एंड क्रिज्मेटिक लीडरशिप की बात करें तो फॉलोअर्स मेक एट्रीब्यूशंस ऑफ हीरोइक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटीज व्हेन दे ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर्स। यहां पे जो मेन चीज थी वो क्रिज्मा था जो कि एक लीडर के अंदर पाया गया। और मुझे अक्सर औकात इस क्रिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी को पढ़ के ये ख्याल आता है कि अगर क्रिज्मा वाकई लीडरशिप को एलैबोरेट कर सकता होता तो जितने भी हमारे हीरोज हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के हैं, दे मस्ट ऑल बी also wonderful leaders in every other walk of life as well. लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस वीडियो स्क्रीन के अलावा they might not be able to perform as much as they are able to demonstrating in the screen. Anyway, जब हम क्रिज्मेटिक लीडर की बात करते हैं और सिर्फ क्रिज्मा पे फोकस कर रहे हैं तो इट इज सेड कि they have the vision, they are willing to take personal risk to achieve a vision, they are sensitive to the follower needs, or they exhibit behaviors that are out of the ordinary. Why? Because हमने उसके क्रिज्मा को अपने लिए आइडियल तस्वुर कर लिया। इसमें आइडियलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है rather than realism, और हमने ये तस्वुर कर लिया कि they can do something which is extraordinary. अब क्रिज्मेटिक लीडर्स जो हैं उनके अगर हम फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को एवेल्युएट करें, उनका अनकन्वेंशनल बिहेवियर होगा, उनकी सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, उनकी एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द पर्सनल रिस्क वो बहुत ज्यादा होगा, एंड ऑब्वियसली द विजन एंड द फ्यूचर आर्टिकुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी इज ऑल व्हाट दे कैन डू विद द ब्लिंक ऑफ द आई. Okay, so again we are following up the basic charisma which the leader is coming up with. Along with that, we are also available with the details related to the transactional leaders and the transformational leaders. When we talk about transactional leaders, leaders who guide or motivate their followers in the direction of established goals, so that is what we call transactional. Okay, उनकी task requirements ज़्यादा होती हैं, जबकि जो transformational हैं वो तब्दील कर देते हैं, right? They transform actually. और उस पर्पस के लिए the leaders who provide the 4 I's, और वो 4 I's क्या हैं? They come up with individualized consideration, inspirational motivation, idealized influence, and obviously intellectual stimulation. अब इन 4 एस्पेक्ट्स को जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के साथ एसोसिएटेड हैं हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस में प्रोवाइड्स विजन एंड सेंस ऑफ मिशन, इंस्टिल्स प्राइड, गेन्स रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। जब हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे तो उस केस में कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस, यूजेस सिंबल्स टू फोकस एफर्ट्स, एक्सप्रेसेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस इन सिंपल वेज. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, प्रमोट्स इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी एंड केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, तो गिव्स पर्सनल अटेंशन, ट्रीट्स ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेस, एडवाइजेस. तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी मदद से, जिनके होने से द लीडर इज एबल टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोअर्स. अब ट्रांजैक्शनल लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर आल्सो डिस्कस्ड. दे आर मोर लाइक कंटिंजेंट, प्रोवाइडिंग कंटिंजेंट रिवॉर्ड.
which means extracts exchange of rewards for effort, promises rewards for good performance and recognizes accomplishments. Okay, क्योंकि वो है तो लीडर ना. इसी तरह मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव की अगर हम बात करें तो वॉचेज एंड सर्चेज फॉर डेविएशन फ्रॉम रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, और वो टेक करेक्टिव एक्शन करेगा जो ही कोई प्रॉब्लम आ रही है. जिसके बरक्स अगर हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव स्टाइल की बात करें तो इंटरवीन्स ओनली इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. ओके, और इसके अलावा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की कॉन्टेक्स्ट में वी हैव अनदर description which is laissez-faire, which means abdicates responsibilities, avoids making decision. It's a French word actually which literally means that leave me alone. Okay, so इसमें जहां पर you want to be independent तो वहां पर लीडर का जो रोल होगा that would be tremendously low. इसके बाद हमारे पास दौर शुरू होता है पोस्ट हेरोइक मॉडल्स ऑफ लीडरशिप का, और पोस्ट हेरोइक मॉडल्स में we have corporate scandals coming in. सन 2000 के फौरन बाद in the corporate world there were certain bankruptcies which were taken up as the world's largest bankruptcies, जैसे कि Enron, WorldCom. There are a couple of organizations who were bankrupt because of the scandals generated and evolved through their leadership. Okay, तो वहां पर जो ट्रस्ट था लीडरशिप के ऊपर वो बहुत ज्यादा शेक हो गया. जैसा आपके आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, which was talking about the romance of leadership. तो जो रोमांस ऑफ लीडरशिप चल रहा था कि द लीडर्स आर द लाइक वो मसीहा की हैसियत वो रखते हैं और वो हमें हर मामले में पार लगा देंगे. बट द इशू वाज कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में जब प्योरली हम बात कर रहे हैं तो लीडरशिप का जो रोल था इट वाज रादर चैलेंज्ड. हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेशन टाइम खत्म हो रहा है. काइंडली सेकंड सेशन टाइम में ज्वाइन कीजिए. थैंक यू.